हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेस वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट नंबर 46 फ्रॉम टॉपिक नेम एंड रिएक्शन इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइक हॉफमैन रिएक्शंस है, हॉफमैन एलिमिनेशन, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शंस के जिसके अंदर फिनॉल जो है वो कन्वर्ट होता है इन सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरह से स्टार्टिंग प्रोडक्ट या फिर एंड प्रोडक्ट या फिर ये जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हर बार पूछे गए हैं इन जीपैट, नाइपर, डीआईएन, फार्मासिस्ट एग्जाम। So let's solve the multiple choice question on this topic as a part of our online test series for GPAT, NIPER, DIN, pharmacist exam. So in this online test series, we provide you 365 topic wise test in 365 days validity. Price is just ₹100 is like 28 paisa per day. You will get MCQ solution, proper explanation, proper result analysis, and you will also get your instant test result. So this facility available on Pharmarox mobile application. Download their Pharmarox Android application on Google Play. For test series you can contact on 9016312020. So test number 46, name and reactions. Topic is name and reaction and subject is a pharmaceutical chemistry. So here is the question number 1. Reaction of alkyl trimethyl amines proceeds with anti-stereochemistry and is generally suitable for producing alkenes with one or two substituents is called ऑप्शंस दिए हैं विल्जेरोड किंडलर रिएक्शंस, सेकंड है हेटच डाइहाइड्रोपिरिडिन सिंथेसिस, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शंस, and option D is Hofmann elimination. So question is about the reaction of alkyl trimethyl amine proceeds with anti-stereochemistry and is generally suitable for producing alkenes. मतलब कि जो प्रोडक्ट आपको मिलती है वो है alkene with one or two substituent is called. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Hofmann elimination. So let's check the explanation of this reaction. So Hofmann elimination, here you can see the reactions in that it is also sometimes referred to as a Hofmann degradation. This elimination reaction of alkyl trimethyl amines proceed with anti-stereochemistry and is generally suitable for producing alkenes. Okay, यहाँ पे देख सकते हो कि आप alkyl trimethyl amines and here you are getting the alkenes with one or two substituents. These reactions follow the Hofmann rule. So ये जो reactions है elimination reactions को Hofmann elimination भी कहा जाता है, Hofmann degradation भी कहा जाता है and it follow the Hofmann rule. So main जो pinpoint इस questions के अंदर जो आपको याद रखना है to identify these reactions for multiple choice question. So you have to remember this alkyl triethyl amines and the word anti-stereochemistry. Okay, and जो प्रोडक्ट आपको मिलती है वो है alkene. तो ये पिन पॉइंट से आप फाइंड कर सकोगे कि दैट इज ए Hofmann elimination reaction. Next question number 2. Reactions allow the synthesis of amides from aryl ketone under the influence of a secondary amine and thiating agent. So यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ एमाइड. तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो है एमाइड फ्रॉम एराइल कीटोन, मतलब कि स्टार्टिंग मटेरियल आपका हुआ जो है एराइल कीटोन और जो आपकी प्रोडक्ट है वो है एमाइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेकेंडरी एमाइन एंड थाइटिंग एजेंट. सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. ऑप्शंस क्या दिए हैं? विल्जेरोड किंडलर रिएक्शन, हेटस डाइहाइड्रोपिरिडिन सिंथेसिस, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन and Hofmann elimination. And the correct answer is the option number A, Viljerod Kindler reaction. So what is the proper explanation? So let's check in this diagram.
So the reactions allow the synthesis of amide from aryl ketone. Okay, so here is your starting material, and that is a aryl ketone. Okay, here you can see the aryl ketone, and this is your product. It is a amide. Here you can see the amide. This is the aryl ketone. Under the influence of the secondary amine, NH for twice SX, it is a thiating agent and also the water. So ये जो रिएक्शन है उसको कहा जाता है विल्जेरोड किंडलर रिएक्शन. Next, question number 3. This multi-component condensation of a non-enolizable aldehyde, a primary or secondary amine, and enolizable carbonyl compound affords the amino methylated products. Options are Mannich reaction, Kolbe-Schmitt reactions, Markovnikov rule, or anti-Markovnikov rule. So first identification word, it is a multi-component condensation. Okay, ऐसी कौन सी रिएक्शंस है कि जिसके अंदर मल्टी कंपोनेंट कंडेंसेशन होता है ऑफ नॉन एनोलाइजेबल aldehyde, a primary or secondary amine, and enolizable carbonyl compound affords the amino methylated product. So आपकी जो प्रोडक्ट है लास्ट में वो है एमिनो मिथाइलेटेड प्रोडक्ट्स, तो वो रिएक्शंस कही जाएगी Mannich reactions. So let's check the explanation of this question. So this is the Mannich reactions. So multi-component condensation of non enolizable aldehyde. Here you can see this, that aldehyde, primary or secondary amine. This is the amine, and enolizable carbonyl compound. This is your carbonyl compound affords the amino methylated product. So ये जो आपको यो प्रोडक्ट मिल रही है, it is a amino methylated products. So ये जो रिएक्शन है उसको कही जाती है Mannich reaction. The iminium derivative of the aldehyde is the acceptor in the reaction. The involvement of the Mannich reactions has been proposed in many biosynthetic pathways, especially for the alkaloids. कि जो बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं अल्केलॉइड्स, तो उसके अंदर ये रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है Mannich रिएक्शंस. ओके, फिर से एक बार देख सकते हैं कि आप ये फर्स्ट है आपका नॉन इनोलाइजेबल aldehyde 1, तो दिस इज योर फर्स्ट. सेकंड जो है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन, दिस वन, इट इज द सेकंड. एंड एनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज द थर्ड, और ये है आपका थर्ड. और ये जो फोर्थ जो है एमिनो मिथाइलेटेड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल रही है. तो ये आपको इजीली याद रख सकते हो बाय यूजिंग दिस पिन पॉइंट कि दिस इज द Mannich reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. रूल प्रेडिक्ट द regiochemistry of HX addition to unsymmetrical substituted alkenes. The halide component of HX bond preferentially at the more highly substituted carbon, where the hydrogen prefers the carbon which already contain more hydrogen. Mannich reaction, Kolbe-Schmitt reactions, Markovnikov's rule, anti-Markovnikov rule. तो क्वेश्चन है यहाँ पे रूल प्रेडिक्शन का दिया है, इससे आपको यहीं पे एक पिन पॉइंट मिल जाएगी. सो ये कोई रिएक्शंस नहीं होगी, रूल होगा. सो ये जो दो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से निकल जाने चाहिए. ओके, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस टू ओनली, कि मार्कोनिकोव रूल है या फिर एंटी मार्कोनिकोव. सो द हैलाइड कंपोनेंट ऑफ HX बॉन्ड रिफरली एट द मोर highly substituted carbon, where the hydrogen prefer the carbon which already contain more hydrogen. So ये रिएक्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, Markovnikov's rule. So let's check the explanation. So Markovnikov's rule predicts the regiochemistry of HX addition.
to unsymmetrically substituted alkene. Okay, so this is your unsymmetrically substituted alkene, this one. Okay, number 1. और एडिशन हो रहा है HX का. ओके, दिस इज द HX एडिशन. एंड इस तरह से आपको जो आपकी प्रोडक्ट मिल रही है कि रिजियो केमिस्ट्री कह सकते हैं आप इसको ऑफ HX एडिशन. अब क्या होता है, द हैलाइड कंपोनेंट ऑफ HX bonds preferentially at the more highly substituted carbon, where the hydrogen prefer the carbon which already contain more hydrogen. So हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है, यू कैन सी. ओके, एंड द कार्बन विच ऑलरेडी कंटेन द मोर हाइड्रोजन, तो उसके साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो अटैच ही है और वहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन अटैच हो रहा है. एंड हियर देयर इज ए एडिशन ऑफ X. तो ये जो रूल है वो प्रेडिक्ट करता है कि मार्कोनिकोव्स रूल. सो आपके लिए एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि व्हाट इज रिजियो केमिस्ट्री. सो इज द केमिस्ट्री ऑफ रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस. इट इज द टर्म दैट डिस्क्राइब हाउ ए केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस. रिजियो सिलेक्टिव इज द प्रेफरेंस ऑफ वन डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग ओवर ऑल अदर पॉसिबल डायरेक्शंस. मतलब कि एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही है कि जिसको रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस भी कहा जाता है. एंड इज द प्रेफरेंस ऑफ द वन डायरेक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग, कि समझो कि केमिकल बॉन्ड को आप बना रहे हो या फिर इसको ब्रेक कर रहे हो ओवर ऑल अदर पॉसिबल डायरेक्शंस. ओके, सो पॉसिबल जो भी डायरेक्शंस है उसको आप फॉलो करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो या उसको ब्रेक कर रहे हो. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर कि वो है एंटी मार्कोनिकोव रूल्स. सो सम रिएक्शंस डू नॉट फॉलो द मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट्स आर isolated. This is the feature, for example, of radical induced additions of HX and hydroboration. कि कोई radical induce. Okay, here you can see the radical induction addition of Br. हाइड्रोबोरेशन यहाँ पे हो रहा है. सो तीनों डाउट्स यहाँ पे क्लियर. मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिकर एंड व्हाट इज ए रिजियो केमिस्ट्री. आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. रिएक्शन इज थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल. द रिएक्शन डोनर्स आर एक्टिव मिथिलिन्स सच एज मेलोनेट्स एंड नाइट्रोअल्केन्स and the acceptors are the activated olefins such as alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो ये जो पॉइंट्स है कि रिएक्शन डोनर आर एक्टिवली मिथिलिन्स, मतलब कि ऐसी रिएक्शंस के सेंटेंस में एक तो वर्ड आ रहा है डोनर एंड सेकंड वर्ड आ रहा है एक्सेप्टर्स. ओके, और जो अब तक जितनी भी हमने केमिकल रिएक्शंस देखी, पार्ट 45 में भी हमने केमिकल रिएक्शंस नेम एंड रिएक्शंस पढ़ा था. ओके, और पार्ट सेकंड इसका कि टेस्ट नंबर 46 में भी हम ये केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं. बट अब तक कोई भी ऐसा सेंटेंस में डोनर और एक्सेप्टर ऐसा वर्ड हमने नहीं देखा. सो दिस इज द यूनिक रिएक्शंस एंड लेट्स चेक द ऑप्शंस. NEF रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2, मिसेल एडिशन और ओजोनोलाइसिस. सो आपको अब काफ़ी आइडिया आ गया होगा कि ये कौन सी रिएक्शन से. एंड यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर इज द मिसेल एडिशन. सो मिसेल एडिशन के अंदर जो है ये वर्ड्स खास ये इम्पोर्टेंट है कि रिएक्शंस डोनर एंड रिएक्शन एंड द एक्सेप्टर्स. ओके, तो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल. तो मिसेल एडिशन, इट इज द one for addition or conjugate addition of a resonance stabilized carbanions. So इसके अंदर ये डोनर्स और एक्सेप्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं कि जो हमने आगे MCQ के अंदर देखा. सो आगे जानते हैं रिगार्डिंग दिस रिएक्शंस.
The micelle addition is a thermodynamically controlled. The reactions donor are active मिथिलिन्स. अब डोनर्स आपको खास याद रखने के मिसेल एडिशंस के अंदर डोनर्स कौन से, तो यहाँ से भी कोई एमसीक्यू बन सकता है कि विच आर द डोनर्स एंड विच आर द एक्सेप्टर्स. ओके, सो मिथिलिन्स, एक्टिव मिथिलिन्स. देन इसके अंदर है मेलोनेट्स, कि एक्टिव मिथिलिन्स के अंदर है मेलोनेट्स, नाइट्रो अल्केन्स. एंड एक्सेप्टर्स के अंदर है एक्टिवेटेड ओलेफिन्स, एक्टिवेटेड olefins such as alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो जब भी आप कहीं भी कोई भी एग्जाम में ये वर्ड्स देखो कि olefins, नाइट्रोअल्केन्स, मिथिलिन्स, मेलोनेट्स, ओके, और रिएक्शन डोनर एंड एक्सेप्टर्स, तो आपको आंखें बंद करके एक ही आंसर टिक करना है, वो है मिसेल एडिशन. ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर number 6. The conversion of nitro compound into carbonyl is known as the which reactions. कि कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रो कंपाउंड्स का इनटू कार्बोनिल. ओके, सो फॉर्मेशन हो रहा है, लास्ट में जो आपको प्रोडक्ट मिलती है वो है कार्बोनिल्स. ओके, और आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा वो है नाइट्रो कंपाउंड्स. सो नाइट्रो कंपाउंड्स कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बनाएंगे कार्बोनिल. तो ये रिएक्शंस का नाम क्या रहेगा? NEF रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2, मिसेल एडिशन और ओजोनोलाइसिस. अब ये जो ऑप्शन है उसमें ओजोन के जो फॉर्मूला होती है O3, तो यहाँ पे कोई रिएक्शंस में ऐसा ओजोन या O3 इसका कोई जिक्र ही नहीं किया है, इसलिए ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो. तो मिसेल एडिशन में आपको पता है कि डोनर, एक्सेप्टर और डोनर और एक्सेप्टर दोनों वर्ड्स होते हैं, ये भी इसमें नहीं है. देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और NEF. अब ये आपके पास ये दो ऑप्शंस बचते हैं, इसमें से आपको सही आंसर अब फाइंड आउट करना है. सो द करेक्ट आंसर इज नाउ इट इज ए NEF reaction. So let's check the explanation of this NEF reaction. So its first sentence, conversion of nitro compounds. Okay, यहाँ पे है nitro compound into carbonyl. Okay, this is the carbonyl group, C double bond O. Okay, C double bond O carbonyl compounds की जो NO2 ग्रुप है उसमें से कन्वर्ट होके हमें मिल रहे हैं carbonyl, is known as the NEF reaction. So the various methodologies has been developed, but the most important is standard procedure. Preformed nitronates salt is poured into strong aqueous acid at pH less than 1. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस कैसे परफॉर्म की जाती है. तो preformed nitronates salt is poured into strong aqueous acid less than pH 1. ओके, दो ऑप्शंस होते हैं बेस और एसिड, बट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है स्ट्रॉन्ग एक्वियस एसिड एट pH लेस देन 1. तो ये जो फॉर्मेशन होता है लास्ट में कार्बोनिल उसका फ्रॉम द NO2, मतलब कि नाइट्रो कंपाउंड्स में से कार्बोनिल्स बन रहे हैं. तो ये आपको याद रखनी है रिएक्शंस का नाम, NEF रिएक्शंस और NEF रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 7, रिएक्शंस इज द partial solvolysis of nitrile to yield an iminoether. तो यहाँ पे yield मतलब कि जो प्रोडक्ट लास्ट में जो आपकी प्रोडक्ट है वो है इमिनोईथर. ओके, नाउ पार्शियल सॉल्वोलाइसिस, ये आपको वर्ड पकड़ के रखना है टू रिमेंबर दिस रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, कि ये रिएक्शंस का कौन सा नाम रहेगा. तो इसके लिए एक आपको सॉल्वोलाइसिस वर्ड पकड़ना है. ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्राइल विथ गैसियस HCl in a mixture of anhydrous chloroform and
एन अल्कोहल प्रोड्यूस द इम्यूनो ईथर हाइड्रोक्लोराइड। तो ये एक वर्ड रहेगा कि गैसियस HCl, नाइट्राइल विथ गैसियस HCl। अब तक आपके जो भी देखे उसमें गैसियल HCl का जिक्र कहीं भी नहीं था, फर्स्ट टाइम ऐसा वर्डिंग आया। तो आपको दो वर्ड्स खास पकड़ने हैं यहाँ पे, एक है गैसियस HCl और दूसरा आपको याद रखना है पार्शियल सॉल्वोलाइसिस। तो लेट्स चेक द ऑप्शंस। अब ऑप्शंस क्या दिए हैं? पिनर रिएक्शन, पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन, प्रिंस रिएक्शंस और पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो आपके पास कंफ्यूजन्स के लिए ये भी है कि पिनाकोल कपलिंग है या रीअरेंजमेंट है या फिर प्रिंस है या पिनर। चारों ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही नए रहेंगे। तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। इट इज अ पिनर रिएक्शन। सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन। So Pinner reactions, in that partial solvolysis of nitrile to yield at iminoether. Okay, this is your nitrile and this is the formation of iminoether. This is your gaseous HCl. Okay, gaseous HCl. So treatment of nitrile with gaseous HCl, okay, in a mixture of anhydrous chloroform and alcohol produce the iminoether hydrochlorides. okay, अल्कोहल भी अपने साथ में लिया है और ये आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो है इमिनोईथर हाइड्रोक्लोराइड। सो ये जो रिएक्शंस है उसको हम कहेंगे पिनर रिएक्शंस। मोस्ट IMP रिएक्शंस अपकमिंग एग्जाम्स में खास पूछी जा सकती है ये, सो आपको अच्छे से याद रखना है। दिस सॉल्ट आर ऑल्सो नोन एज ए पिनर सॉल्ट्स एंड मे रिएक्ट फर्दर विथ वेरियस न्यूक्लियोफिलिक्स। ओके, ये जो है फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के अंदर वो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ वो यूज होता है फॉर फर्दर अदर केमिकल रिएक्शंस। सो इस तरह से समझो कि आपके पास है कोई नाइट्राइल और उसकी रिएक्शंस हो रही है गैसियस HCl के साथ। तो उसी वक्त आपको ये पकड़ लेना है कि ये जो रिएक्शन है वो है पिनर रिएक्शंस। 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, चार्ट बनाओगे तो इसको याद रखना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। या फिर आप एक अच्छा सा बड़ा वॉलपेपर बना सकते हो घर में, ओके, फ्री टाइम के अंदर, कि नेम ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग मटेरियल, एंड मटेरियल क्या है, कोई कैटालिस्ट कंडीशन क्या है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा चार्ट बना रहे हो, सबसे पहले लिख दो सीरियल नंबर, ओके, उसके बाद लिखो नेम ऑफ रिएक्शंस क्या है, ओके, फिर लिखो उसका स्टार्टिंग मटेरियल, फिर उसकी लिखो प्रोडक्ट और उसके कोई कैटालिस्ट क्या है, कंडीशंस क्या है कि कौन सी कंडीशन में रिएक्शंस होती है। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा अच्छे से टेबल बन जाएगा। 1 2 3 जितने भी रिएक्शन से अच्छे से एक टेबल बना के आप एक चार्ट या वॉलपेपर आपके रूम में लगा सकते हो। तो जितने भी बार वो आपके नज़र के सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग मटेरियल ये है, एंड प्रोडक्ट ये है, तो ये हो गई आपकी ये रिएक्शंस। So easily you can remember by making this type of chart regarding this type of MCQ of name and reactions. So ये ट्रिक खास आप फॉलो करिए तो इससे काफ़ी आपको फायदा होगा टू रिमेंबर द नेम एंड रिएक्शंस। आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर स्टेबिलाइज ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट एंड देयर एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेफर-मस्की रिएक्शन, रिटर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और सेटेज रोल। सो द राइट आंसर इज द रेफर-मस्की रिएक्शन। ओके, तो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर स्टेबिलाइज ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। ओके, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट आपका फॉर्म हो रहा है एंड देयर एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए
Riefer-Musky reaction. So let's check the explanation of this reaction. Riefer-Musky reactions, एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है कि ऑर्गेनो जिंक जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर स्टेबिलाइज ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट एंड देयर एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड्स. सो सिंपल ये की वर्डिंग से आप ये रिएक्शंस जो है वो याद रख सकोगे. दिस इज ए Riefer-Musky रिएक्शंस. आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरोमेटिक एमाइनो ग्रुप is possible via preparation of its diazonium salt and subsequent displacement with nucleophiles like chlorine, iodine, cyano group. Reactions proceed further under copper catalysis. Name these reactions. Riefer-Musky reactions, Ritter reactions, Sandmeyer reactions or Setzeff rule. So यहाँ पे एक वर्ड है कि डाइजोनियम सॉल्ट. ये आपके लिए बनेगा मेन पिन पॉइंट. ओके, फिर क्या हो रहा है, कॉपर कैटालिस्ट यूज है रहे और साथ में न्यूक्लियोफाइल्स Cl, I, Cn, Rs, HO वगैरह न्यूक्लियोफाइल्स यूज हो रहे हैं. तो ये रिएक्शंस को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक एमाइनो ग्रुप. ओके, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एरोमेटिक एमाइनो ग्रुप्स का. तो ये रिएक्शंस रहेगी सैंडमेयर रिएक्शन. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. सो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम डिटेल में देखेंगे रिगार्डिंग द सैंडमेयर रिएक्शन. सो 11-12 में भी ये काफ़ी फेमस रिएक्शन थी, सैंडमेयर रिएक्शंस. ओके, 11-12 केमिस्ट्री के अंदर हर बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता था कि डिटेल में आपको समझाना रहता था सैंडमेयर रिएक्शंस के बारे में, और ये आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते थे. सो द सैंडमेयर रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक एमाइनो ग्रुप. ओके, यहाँ पे है आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमाइनो ग्रुप की एमिनो है, बेंजीन रिंग है, और फिर क्या हो रहा है, इज पॉसिबल वाया प्रिपरेशन ऑफ इट्स डाइजोनियम सॉल्ट. अब HX एंड NONO2 0 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको कन्वर्ट करते हो उसके डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर. एंड सब्सिक्वेंट डिस्प्लेसमेंट विथ न्यूक्लियोफाइल लाइक क्लोरीन कि CuX. ओके, कि जिसको हम क्यूप्रस हैलाइड कहते हैं. क्यूप्रस हैलाइड और साथ में टेम्परेचर है 60 और 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 to 100 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शंस करने से आपको मिलता है ये एरोमेटिक हैलाइड मिलता है, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलाइड. लाइक इस तरह से कि समझो कि CuX में आप CuCl लेते हो तो आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन मिलता है. CuBr लेते हो तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलता है. एंड CuCN लेते हो तो आपको मिलता है साइनोबेंजीन. और ये है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट. सो द सैंडमेयर रिएक्शन इज a chemical reaction used to synthesize aryl halide. Okay, aryl halide from aryl diazonium salt. Okay, ये है aryl diazonium salt और फॉर्मेशन हो रहा है ये एराइल हैलाइड्स का यूजिंग कॉपर सॉल्ट एज अ रिएजेंट और कैटालिस्ट. कि ये कॉपर के जो सॉल्ट है CuX, जिसको हम क्यूप्रस हैलाइड कह सकते हैं. तो समझे क्यूप्रस क्लोराइड यूज किया है तो क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, ब्रोमीन यूज किया है तो ब्रोमाइड, और CN साइनो यूज किया है तो साइनो मिलेगा आपको. इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. द मोस्ट IMP रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन, कि बहुत बार इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, एज वेल एज ब्रीफ नोट के अंदर भी ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं. सो इसमें एक और कंडीशन है सैंडमेयर रिएक्शंस के अंदर कि जब आपके पास RSH होता है, मतलब कि थायोल्स है, फिर समझो कि H2 है, वाटर एंड पोटेशियम आयोडाइड है. सो उस वक्त आपको कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है. डोंट रिक्वायर्ड द कैटालिस्ट. डायरेक्टली आप देख सकते हो
आयोडोबेंजीन, ओके, फिनॉल बन रहा है, एसआर डायरेक्टली अटैच हो रहा है, थायो ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच हो रहा है कि विदाउट यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ कैटालिस्ट की। यहाँ पे हम यूज करते थे क्यूप्रस हैलाइड। तो जब थायोल, वाटर एंड पोटेशियम आयोडाइड होता है तो उस वक्त आपको कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए बहुत ही बड़ा एक पिन पॉइंट है कि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सैंड में रिएक्शंस रिक्वायर द कैटालिस्ट एक्सेप्ट, ओके। तो समझे कि ऑप्शंस में आपको दिया है CuX दिया है, ओके, या फिर CuX के अंदर आपको दिया है CuI, CuR दिया है, CuCl दिया है, बट एक ऑप्शंस दिया है Ki। तो Ki के अंदर कोई भी टाइप का कैटालिस्ट, कॉपर कैटालिस्ट की जरूरत नहीं रहती। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट अबाउट सैंडमेयर रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इट इज सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिक बायएराइल्स वाया कॉपर कैटालाइज्ड कपलिंग। सो स्टार्टिंग में ही आपके लिए पिन पॉइंट है कि बायएराइल्स, सिमेट्रिक बायएराइल्स आपकी प्रोडक्ट है, ओके, वाया कॉपर कैटालाइज्ड कपलिंग, कॉपर कैटालाइज्ड कपलिंग CCC, ओके। शॉर्ट में आप याद रख सकते हो कि जिसके अंदर CCC यूज होता है वो कौन सी रिएक्शन है। तो विल्समियर हैक रिएक्शन, अल्मैन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस और विटिज रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में आपको अल्मैन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज आपको विटिज रिएक्शंस क्या है वो भी खुद से एक्सरसाइज करनी होगी। ऑल्सो अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस, विल्समियर हैक रिएक्शंस एक्सेट्रा। तो इसका राइट आंसर है अल्मैन रिएक्शन। So let's check the explanation of this reaction. So Ullmann reaction, it is the reactions. There are two different transformation referred as a Ullmann reactions in that the classic Ullmann reaction is the synthesis of symmetrical biaryls. Okay. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल बायएराइल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं वाया कॉपर कैटालिस्ट, ओके, कॉपर कैटालाइज कपलिंग CCC, कॉपर कैटालाइज कपलिंग यूज हुआ, सिंथेसिस हो गया है आपके पास बायएराइल्स, ओके। तो ये जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे अल्मैन रिएक्शन। सो इसी तरह से प्रॉपर सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 100 रुपीज के अंदर 1 साल के लिए, मतलब कि 28 पैसा पर डे, 28 पैसा पर डे के तौर पे। तो जीपैड के लिए नाइपर, फार्मासिस्ट, DI एग्जाम, ओके, प्राइस सिर्फ 100 रुपीज लगेगी। MCQ सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन सब अवेलेबल रहेगा डिटेल में। फॉर टेस्ट सीरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन 9016312020। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस और डाउनलोड द फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन और गूगल प्ले। ऑल इंडिया प्री जीपैड टेस्ट सीरीज ऑल्सो अवेलेबल। Online test series for GPAT, NIPER, DI, pharmacist exam. So you can subscribe that test series by download the app. Multiple payment options like card, net banking, wallet, UPI are available. So you will find proper solution, explanation of each and every MCQ. So contact on Pharmarox 9016312020. Test series for human anatomy also available. NIPER learning course also available for preparation of NIPER exam with study material. So download the Pharmarox Android application on Google Play.